فیصلہ کے جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا فقدان، حاملہ خواتین کی مشکلات میں اضافہ۔ رات کے وقت میں گائناکالوجسٹ اور بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر سمیت دیگر سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث آپریشن رک گئے۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے الائیڈ ہاسپٹل 2 گائنی وارڈ کی شکایت پر جوابی خط لکھ دیا۔ جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کی کمی، حاملہ خواتین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ الائیڈ ہسپتال 2 گائنی وارڈ کی شکایات پر جنرل ہسپتال سمن آباد گائنی وارڈ نے جوابی خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جنرل ہسپتال سمن آباد 50 سے 250 بیڈز پر منتقل ہو چکا ہے۔ یہاں ماہانہ 100 سے زائد حاملہ خواتین کے بڑے آپریشن کیے جا رہے ہیں، تاہم ابھی تک رات کے وقت جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا فقدان ہے۔ رات کے وقت بلڈ بینک سروس، لیبارٹری بیک اپ، گائناکالوجسٹ، بے ہوشی والا ڈاکٹر اور دیگر عملہ نہ ہونے کے سبب آپریشن نہیں کیے جا رہے۔ ہسپتال میں 24 گھنٹے کم از کم 4 کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ سہولیات کی کمی کے باعث رات کے اوقات میں بڑے آپریشن ٹیچنگ ہسپتال میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ چند روز قبل الائیڈ ہسپتال 2 گائنی وارڈ نے جنرل ہسپتال سمن آباد پر بلا وجہ حاملہ خواتین کو ریفر کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد انتظامیہ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر ان ایکشن، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45 شادی ہالز کی چیکنگ۔ ون ڈش اور وقت کی پابندی نہ کرنے پر 4 کیٹرز کے خلاف مقدمات، 13 شادی ہالز کو 5,25,000 کے جرمانے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فیصل آباد میں میرج ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر ایکشن، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ون ڈش اور وقت کی پابندی کی خلاف ورزی پر شادی ہال میں کیٹرنگ سروس فراہم کرنے والے 4 کیٹرز کے خلاف مقدمات درج۔ شادی ہال انتظامیہ کو 5,25,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 45 شادی ہالز کی انسپیکشن کی۔ دوران چیکنگ 13 میرج ہالز میں خلاف ورزیاں پائی گئیں۔ تحصیل سٹی میں 5 خلاف ورزیوں پر 2,25,000 جرمانہ کیا گیا۔ تحصیل صدر میں 4 خلاف ورزیوں پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ 2 افراد کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ تحصیل سمندری میں 3 خلاف ورزیوں پر 2 افراد کے خلاف 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ تحصیل تاندلیا والا میں ایک میرج ہال کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا کہنا تھا کہ شادی ہال انتظامیہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے تقریبات رات 10 بجے ہر صورت ختم کر دیں۔ عبداللہ نیر شیخ کا مزید کہنا تھا کہ ون ڈش کی پابندی پر 0 ٹالرنس ہے۔ فیصل آباد میں جرائم بے قابو، شہری غیر محفوظ، 24 گھنٹوں میں چوری ڈکیتی سمیت 113 سنگین وارداتیں۔ مزاحمت پر ڈاکو نے نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ ادھر تھانہ ساندل بار کے علاقے میں نومولود کی لاش ملی۔ فیصل آباد میں ڈاکو چور بے لگام شہری غیر محفوظ ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی اور چوری کی 113 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو نے مدینہ ٹاؤن میں نوجوان زبیر کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ تھانہ ساندل بار کے علاقے میں نومولود بچے کی لاش ملی۔ راہزنی کی 24، نقب زنی کی 34 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 31 موٹر سائیکلیں، 2 کار، 4 رکشے اور 4 مویشی چوری ہوئے۔ نوسر بازی، اغوا اور بدفعلی کی ایک واردات رپورٹ ہوئی۔ تھانہ ڈچکوٹ کے علاقے میں کھیتوں میں نومولود بچہ ملا۔ پولیس نے نومولود کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا۔ فیصل آباد میں جرائم انتہا کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم کے پاس فنڈز کی کمی یا پروجیکٹ میں عدم دلچسپی، فیصل آباد میں سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے 148 اسکولوں کو 6 ماہ سے فنڈز نہ مل سکے۔ 700 سے زائد اساتذہ تنخواہوں سے محروم ہو گئے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے پاس فنڈز کی قلت یا حکام کی عدم دلچسپی۔ فیصل آباد میں تعلیم پروجیکٹ کے تحت سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے 148 اسکولوں کو 6 ماہ سے فنڈز نہ مل سکے۔ سرکاری اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے 700 اساتذہ کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہ مل سکے۔ سرکاری اسکولوں میں شام کے اوقات میں پڑھانے والے اساتذہ 6 ماہ سے تنخواہوں کے منتظر ہیں۔ اساتذہ کو سیکنڈ شفٹ پڑھانے کا الگ سے معاوضہ ملنا تھا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ایف ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف آپریشن، ستیانہ روڈ پر 3 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تعمیراتی ڈھانچے میں مسمار، دفاتر کو سربا مہر کر دیا گیا۔
DGFTA का गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन जारी। FDA की इन्फोर्समेंट टीम ने सत्याना रोड पर 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के कयाम की कोशिश को नाकाम बना दिया। DGFTA के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के नाजायज तामीराती ढांचों को मिसमार करके दफातर को सील कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट इम्तियाज अली गोराया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असलम अंसारी और दीगर स्टाफ ने कार्रवाइयाँ की। सत्याना रोड पर पैरामाउंट सिटी, ब्लॉसम सिटी और चक नंबर 223 रेबे की अराजी पर गुलशन हरम विलास के नाम से कायम की जाने वाली हाउसिंग स्कीमों के गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मिसमार करके दफातर को सील कर दिया गया। बगैर मंजूरी काम करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ चालान स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिए गए। गुलशन हरम विलास के खिलाफ कार्रवाई कॉलोनियों के मकीनों के एहतजाज पर की गई। गुलशन हरम कॉलोनी के मकीनों ने डेवलपर्स की जानिब से वादे पूरे न करने पर एहतजाज किया। निगरान हुकूमत के शोबा सेहत के लिए अहसन इकदाम। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल फैसलाबाद के लिए 1 अरब 50 करोड़ के इजाफी फंड्स जारी। 65 बेड्स का इजाफा और मशीनरी समेत दीगर सामान खरीदा जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत शहरियों को इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स जारी कर दिए, जिससे अस्पताल की चौथी मंजिल पर मजीद 65 बेड्स का इजाफा करने के साथ मशीनरी और दीगर सामान खरीदा जाएगा। MS कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम का कहना था मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, कैमरे और IT का सामान खरीदा जाएगा। जी, हमारा ये दिसंबर के एंड तक जो है 65 बेड्स का जो हमारा कार्डियक वार्ड है वो कंप्लीट होगा। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और सेक्रेटरी साहब की खुसूसी कार्रवाई से 150 मिलियन जो है हमें जो रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बजरिया सेंट्रल परचेज बेड्स फराहम करेगा। डॉक्टर राना नदीम ने दिसंबर में तामीराती काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। बोले जनवरी में अस्पताल की चौथी इमारत मुकम्मल फाल हो जाएगी। इंशाल्लाह ये जो है जैसे इसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह जो है ये हमारे जो सामान हमें रिसीव हो जाएगा और हमारे जो 65 बेड्स हैं वो इंशाल्लाह फंक्शनल होंगे और इंशाल्लाह इससे जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 65 बेड्स के इजाफे से कार्डियोलॉजी अस्पताल में टोटल बेड्स की तादाद 332 हो जाएगी। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। 100% रिकवरी की दावेदार बिजली की तकसीम कार कंपनी घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम। एक तो बिजली महंगी, इस पर फेस्को की मतवसत तबके पर सख्तियां बढ़ने लगी। सार्फिन से इकसात की सहूलत छीन ली गई। शहरी बिलों की इकसात न होने पर फेस्को पर बरस पड़े। 100% रिकवरी की दावेदार कंपनी घरेलू सार्फिन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। महंगी बिजली पर फेस्को की सख्तियों ने मुतवस्सित तबके का जीना मुहाल कर दिया। फेस्को ने रिकवरियों का बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया। फेस्को ने 1 माह के बिजली के बिल की इकसात भी रोक दी। घरेलू सार्फिन चंद हजार के बिलों की इकसात के लिए खार होने लगे। शहरी बिलों की इकसात न होने पर फेस्को पर बरस पड़े। बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर से ये किस्त उन्होंने बंद कर दी है। ठीक है, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अपना यानी कि घर पे भी यानी खर्चा दे सकूं और बिजली के बिल भी अदा कर सकूं। हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम को कुछ एहसास करे। बिजली के बिलों से पहले ही परेशान शहरियों की दुहाइयां। फेस्को हुकाम बिजली के बिलों की इकसात की सहूलत फराहम करें। बिलों ਦੀਆਂ किश्तां नहीं करते, ये अफसर मारन दे लायक होए ने। मतलब असी पैसे देना चाहते हैं, असी कहने हैं भी पैसे ले लो, अद्धे करके ले लो, ताकि नहीं तो फिर असी मीटर लवा देंगे। शहरियों ने वजारत तवानाई और पावर डिवीजन से बिजली के बिलों की साथ फिल फौर बहाल करने की इस्तदा कर दी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्बास अली, सिटी 41 फैसलाबाद। गल्ला मंडी जंग के मसाइल ज्यों के त्यों बरकरार। सीवरेज निज़ाम दुरुस्त किया गया, ना ही सड़कों की मरम्मत हुई। सियासी और इंतजामी नुमाइंदों के वादे भी वफा न हो सके। अहले इलाका का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बहाली के लिए कोई इकदाम न हो सके। सेवरी निज़ाम दुरुस्त किया गया, ना ही सड़कों की मरम्मत हुई, जिसके सबब गला मंडी और मुलिका इलाके तबाहाली की दास्तान बने हुए हैं। अहले इलाका का कहना था कि निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने गला मंडी के दौरे किए, काम अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं किए गए। हमारा सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, रोड्स बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि तरक्याती काम न होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके अजाले के लिए इंतजामिया को फौरी अमली इक़दाम करने चाहिए। जी, गुजारिश ये है कि हमारा वार्ड पिछले 4-5 साल से मुसलसल जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा
ये जो गला मंडी है इसमें जो ताजिर हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि बाहर से जो फसल है वो नहीं आती, रास्ते में वो जो किसान है वो बेच देता है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी करके गला मंडी को भी जंग का हिस्सा समझा जाए। गला मंडी अरसा दराज से मसाइल का शिकार है। सेवरी मसाइल और टूटी फूटी सड़कें आड़तियों और खरीदारों के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। ताजरों ने इंतजामिया से गला मंडी की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, City 41 जंग। तोबा टेक सिंह के सरकारी स्कूल तलबा को सहूलियात की फराहमी में नाकाम। चक 268 की तालिबात ट्रैक्टर ट्रॉली पर खेलों के मुकाबले में शिरकत पर मजबूर। महकमा तालीम करोड़ों के फंड्स के बावजूद सफरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन न बना सका। तोबा टेक सिंह के रहमताबाद प्राइमरी स्कूल में खेलों के मुकाबले जारी हैं। चक 268 की तालिबात और असातिज़ा ट्रैक्टर ट्रालियों पर बैठकर ग्राउंड में पहुंचने पर मजबूर। महकमा तालीम करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद तलबा को सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो गया। खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तालिबात और असातिज़ा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। फुटेज सामने आने पर महकमा तालीम ने भी चुप साध ली। अफसरान ने सूरत हाल से लाइलमी का इजहार किया। स्कूलों के खेल हो या कोई और मुकाबले, फंड्स की कमी के बायस सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा को इनमें शिरकत के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, City 41 तोबा टेक सिंह। जंग में आला तालीम के हसूल के ख्वाहिशमंद तलबा की मुश्किलात कम न हो सकी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में BS क्लासेस के लिए नए ब्लॉक्स का मंसूबा फंड की अदम दस्तयाबी के बायस रुक गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का शुमार जिला के बड़े और कदीमी तालीमी इदारों में होता है, जहां 2 साल कबल BS के 4 साला प्रोग्राम्स की क्लासेस के ब्लॉक की तामीर का आगाज हुआ। 14 करोड़ की खतीर रकम से बनने वाले ब्लॉक की तामीर फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस लटक गई। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे की तकमील से 2000 से जायद तलबा ने इस्तेफादा करना था। आला तालीम के हसूल के लिए आने वाले तलबा को जगह की कमी के मसाइल दरपेश हैं। जी बिल्कुल, BS क्लासेस और इंटर की क्लासेस जो है ना, तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारा ये ब्लॉक पिछले कई सालों से ज़ेर तमीर है और ख़ास तौर पर इंटर के जो तालिब इल्म हैं उन्हें क्लासेस लेने के लिए ग्राउंड वगैरह में जाना पड़ता है और उनके लिए क्लासेस अवेलेबल नहीं है। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि आप जहाँ पर गली नाले और सड़कें वगैरह बनवा रहे हैं, आप इसके साथ ये महकमा एजुकेशन जो है या स्कूल डिपार्टमेंट या कॉलेज डिपार्टमेंट है, इसमें आप जो ब्लॉक भी ज़ेर तामीर हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। तलबा ने बताया कि क्लासरूम की कमी के बायस बाहर मैदान में क्लासेस लेने पर मजबूर हैं। बाहर बैठते हैं, ज़्यादातर क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना वहाँ पे बहुत घबराहट वगैरह महसूस होती है, जिसकी वजह से ये BS ब्लॉक बहुत ज़्यादा दिनों से ना ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसकी ना तमीरी नहीं हो रही। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि नए ब्लॉक के मंसूबे के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए ही जारी किए गए। ब्लॉक की जल्द तामीर के लिए आला हुकाम फिलफौर फंड्स की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। कपास की बेहतर पैदावार गुज़िश्ता साल की निस्बत 81% इजाफा। कपास की पैदावार 67 लाख बेल्स रिकॉर्ड। 42% इजाफे से पंजाब में पैदावार 30 लाख बेल्स तक पहुंच गई। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 81% इजाफा। पंजाब हुकूमत की काविश से 42% इजाफा। पंजाब में पैदावार 30 लाख बैल्स तक पहुंच गई। रवां साल कपास की पैदावार पाकिस्तान को बड़ी बचत देगी। हुकूमत की बरवक्त पॉलिसी की वजह से 2 से 3 अरब डॉलर महफूज होगा। सनतकार और जान मार्केट ताजर भी अच्छी पैदावार पर खुश। मेंबर पाइमा फैसलियादाद कहते हैं शानदार कारकर्दगी है, कीमतें भी कम होंगी। कपास में खुद कफील होने के साथ वक्त और पैसे की बचत खुश आइंद है। टर्म पॉलिसी से मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान ने खास तौर पे ये कॉटन में और ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान को जो 2-3 अरब डॉलर बाहर से खर्च करके ये कॉटन इंपोर्ट करनी पड़नी थी, अब वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इंडस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी। कपास पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और टेक्सटाइल के शोबे की आलमी मुसाबकत में नागज़ेरा किरदार अदा करती है। मौजूदा साल में कपास की पैदावार में हैरानकुन सालाना तरक्की अहम कामयाबी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ बिलाल डोगर, City 41 फैसलाबाद। खूबसूरत रंग और इस्तेमाल में पायदार हैप्पीलैक पेंट्स की नई प्रोडक्ट्स। हैप्पीलैक पेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल की नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग तकरीब। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैप्पीलैक पेंट्स ख्वाजा इमाद खालिद सक्का, मैनेजिंग डायरेक्टर ख्वाजा एहसन शाहिद सक्का की दीगर की शिरकत।
خوبصورت رنگوں اور جدید تقاضوں پر مبنی ہیپی لیک پینٹس کی نئی پروڈکٹس کی لانچنگ تقریب سجائی گئی۔ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیپی لیکس پینٹس خواجہ عماد خالد سکہ، مینیجنگ ڈائریکٹر خواجہ احسن شاہد سکہ، ڈائریکٹر خواجہ شہروز احمد سکہ کی شرکت۔ نیشنل سیلز مینیجر ہیپی لیکس پینٹس سیف الحق کا کہنا تھا کہ ہیپی لیک پینٹس کی نئی پروڈکٹس شہریوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے صارفین ہماری پروڈکٹ کی اول چوائس کی لسٹ میں دیکھے جاتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی اس پروڈکٹ کو ہم نے پوری مکمل رینج میں اور کافی زیادہ رنگوں کی تعداد میں لانچ کیا ہے تاکہ لوگ اپنے فرنیچر، اپنے کرٹنز، اپنے انٹیریئر کے حساب سے رنگوں کا بخوبی انتخاب کر سکیں۔ جی ایم سیلز ہیپی لیک پینٹس میاں عمران حامد نے ہیپی لیک پینٹس کی نئی پروڈکٹس کی جدت، معیار اور قیمت پر اظہار خیال کیا۔ کسٹمر کی سہولت کے لیے اس کو آسان اپلیکیشن میں ہے اور انتہائی دیدہ زیب اور دلکش اس کے ڈیزائن بنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جدید دور میں ایسی چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ لانچنگ تقریب میں شریک پینٹ کنٹریکٹرز اور ٹائل فکسر نے نئی پروڈکٹس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہیپی لیک پینٹ بہت زبردست پینٹ ہے، میں نے خود استعمال کیا ہے، تقریباً 20-22 سال سے استعمال کر رہا ہوں۔ ہیپی لیک کی جو نئی پروڈکٹ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اور ریٹ بھی ان کے بہت مناسب ہیں اور بہت زبردست پینٹ ہے۔ جو ہیپی لیک نے جو پروڈکٹ دی ہے، یہ ویلویٹ ٹچ دیا ہے، جو ٹیکسچر دیے ہیں، یہ فیصل آباد کا ایک پاکستان کا ادارہ ہے، تو یہ سستا اور معیاری جو ہماری رینج میں ہوتا ہے، مین چیز یہ ہے کہ کسٹمر کی اور پینٹر کی، کانٹریکٹر کی رینج میں ہوتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر لکی ڈرا کے ذریعے ڈیلرز میں 5 موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ اویس علی، سٹی 41، فیصل آباد۔